Hello everyone, welcome to today's class. In today's lecture, we are going to study about respiration in plants and respiration in animals. We know that food taken in during the process of nutrition is used in cells for various life processes, for various life functions. Now, different organisms use this food in different ways. Okay, so the very first process, the very first step is how do they use? So the very first step is that the glucose, breakdown of glucose into pyruvate. Now what is this pyruvate? क्या होता है ये? तो देखो, what is glucose? Glucose is C6H12O6, a 6 carbon molecule. And what is pyruvate? Pyruvate is C3H3OC minus. So pyruvate is a 3 carbon molecule. So what happens? The glucose is broken down into pyruvate. So the very first step is breaking down of glucose, a 6 carbon molecule, into pyruvate, a 3 carbon molecule. So pyruvate क्या है? It is a 3 carbon molecule. Now अब यहाँ से ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? This process happens in, this takes place in the cytoplasm. ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है. ओके, नाउ अब इसके बाद जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से प्रोसेस डिफरेंट टाइप से होती है. फर्स्ट, दिस प्रोसेस, द फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट हैपेंस इन 3 वेज. पायरुवेट आगे जो फर्दर ब्रेकडाउन होता है वो 3 वेज से होता है, 3 तरीके से होता है. सबसे पहले जैसा होता है, द फर्स्ट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन or air, in the presence of air or oxygen. This type, okay, is known as aerobic respiration, जो presence of air में होती है. ठीक है, the respiration that takes place in the presence of air or in the presence of oxygen. What happens? That the pyruvate gets converted into carbon dioxide and water with the release of energy. So in the presence of oxygen क्या होता है कि pyruvate जो है वो break down हो जाता है into 3 molecules of carbon dioxide and water. Okay, this happens in aerobic respiration. इसमें जो energy release होती है वो बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, the energy release is a lot greater. So the energy released is greater in this process. Now, the second process, which happens in the absence of air or in the absence of oxygen, this type of respiration is known as anaerobic respiration. This type of respiration is known as anaerobic respiration. What happens in this type of respiration? The pyruvate molecule breaks down into ethanol and carbon dioxide. Okay, so ethanol is C2H5OH, 2 carbon molecule. So the pyruvate breaks down into ethanol and carbon dioxide. ठीक है, तो pyruvate ethanol और carbon dioxide में break down हो जाता है. In this the energy release is less, energy कम release होती है. Energy जो है इसमें ज्यादा होती है, and in this the energy released is less energy is released. Okay, and the third is in lack of air or in the lack of oxygen. मतलब air या ऑक्सीजन प्रेजेंट तो है बट जितना चाहिए CO2 और H2O में ब्रेक होने के लिए उतना नहीं है, कम है. ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है? इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम है. सो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन व्हाट हैपेंस? जो पायरुवेट है दैट ब्रेक्स इनटू लैक्टिक एसिड. ठीक है, लैक्टिक एसिड में ब्रेक हो जाता है. लैक्टिक एसिड क्या है? C3H6O3. ठीक है, द फॉर्मूला फॉर लैक्टिक एसिड इज C3H6O3. पायरुवेट में 3 कार्बन है, लैक्टिक एसिड इज आल्सो 3 कार्बन. सो इन द लैक ऑफ एयर और इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है.
एंड जब ये लैक्टिक एसिड, कभी हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं या बहुत हैवी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, सो व्हाट हैपेंस, द लैक्टिक एसिड गेट्स बिल्ड अप, ठीक है, जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है. दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड, ओके, द बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड causes cramps. जो हमें क्रैम्प्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं कि जब भी लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. एंड ये लैक्टिक एसिड जब बिल्डअप हो जाता है हमारे मसल्स में, तो उसके कारण हमें क्या होते हैं, वी हैव क्रैम्प्स. Okay, so this is the process of respiration, the process of breakdown of food that takes place in organisms. पहली स्टेप क्या है, the first step which is common in all, जो सब में कॉमन है, उसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है. फिर फर्दर जो ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का, वो ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप से होता है. फर्स्ट when in the presence of air or oxygen, second in the absence of air, anaerobic respiration, and third in the lack of air. Okay. नाउ अब ये जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन में, ठीक है, जितनी भी एनर्जी जो रेस्पिरेशन में रिलीज हो रही है, जो हमने देखा एब्सेंस में, प्रेजेंस में, कि प्रेजेंस ऑफ एयर में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्सेंस ऑफ एयर में ज्यादा एनर्जी, कम एनर्जी रिलीज हो रही है. तो ये एनर्जी हो रही है रिलीज ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन में वो रेस्पिरेशन जो सेल्स में हो रहा है, हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है. सो दिस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन is used to synthesize a molecule called ATP. Okay, so the energy released during cellular respiration में जो एनर्जी रिलीज हो रही है is used to synthesize मतलब बनाने के लिए, मेक करने के लिए. तो वो क्या सिंथेसाइज करने के लिए यूज हो रही है, used to synthesize a molecule called ATP. ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, ATP. ATP पढ़ा होगा क्लास 9th में भी, ठीक है. ATP क्या होता है, द फुल फॉर्म ऑफ ATP इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है ATP. ठीक है, ये ATP कहां से आता है कि जितनी भी जो सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट एनर्जी इज यूज्ड, इसे यूज करते हैं टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP. ATP को प्रोड्यूस करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए ATP यूज होता है. ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ ATP इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. अब ये ATP क्या है, सो ATP को हम बोलते हैं, इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल. एक सेल की एनर्जी करेंसी है. ठीक है, जैसे हमें अगर कोई भी चीज परचेज करनी है, बाय करनी है, तो हम क्या करते हैं, करेंसी यूज करते हैं, रुपीज यूज करते हैं. रुपीज का करेंसी है, तो हम उस चीज को यूज करके जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसे हम फुलफिल कर सकते हैं. ठीक है, तो सेल का क्या है कि सेल की जो भी रिक्वायरमेंट्स है एनर्जी की, उसे कैसे फुलफिल किया जा सकता है, बाय एनर्जी करेंसी. और ये एनर्जी करेंसी कौन है, ये ATP मॉलिक्यूल. ठीक है, सो ATP मॉलिक्यूल का है, सेल का एनर्जी करेंसी है. सेल की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, सेल की फंक्शनिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी जरूरी चीजें उससे लगती है, वो कौन फुलफिल करता है, ये एनर्जी करेंसी. जैसे हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम चीजें बाय करके फुलफिल करते हैं, और हम चीजें बाय कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ करेंसी, रुपीज से. तो वैसे ही सेल की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होती है बाय एनर्जी करेंसी, एंड दिस एनर्जी करेंसी इज नोन एज ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, अब ये जो ATP है, व्हाट हैपेंस कि जो ADP मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, व्हाट इज ADP, ADP इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. ठीक है, ADP में जब एक फोस्फेट ऐड हो जाता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी की प्रेजेंस में, तो वो क्या होता है, ADP के साथ वो फोस्फेट मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है और वो बना लेता है ATP. देखो, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट मींस 2 फोस्फेट, एंड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट मींस 3. तो अगर डाइफॉस्फेट में एक फोस्फेट ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट. सो इट इज ATP.
ओके, सो दिस इज ऑल विथ रेस्पिरेशन। ठीक है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, एनर्जी करेंसी क्या होती है और किसके थ्रू रेस्पिरेशन किस टाइप से होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। सबसे पहले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा से होता है, हमने पढ़ लिया है स्टोमेटा के बारे में इन द इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी हमने पढ़ लिया था कि जब स्टोमेटा क्लोज होता है, ओपन होता है, उसमें गार्ड होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हमने ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, हमने फोटोसिंथेसिस वाले लेक्चर में सब पढ़ लिया था। सो नाउ वी ऑलरेडी नो कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कहां से होता है, गैसेस का जो एक्सचेंज है वो कहां से होता है, थ्रू स्टोमेटा। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, नाइट के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस अकर नहीं होता। तो नाइट के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो मेजर काम क्या है, CO2 का एलिमिनेशन। ठीक है, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी। ठीक है, CO2 निकलना, एलिमिनेट होना, वो क्या है, मेजर एक्टिविटी है रात के टाइम पे। ओके, एट नाइट। नाउ ड्यूरिंग डे फोटोसिंथेसिस होता है डे के टाइम पे। फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो एलिमिनेशन है वो ड्यूरिंग डे नहीं होता। तो डे के टाइम पे नो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती और क्या रिलीज होती है डे के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ओके, सो प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है कि नाइट के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन मेजर प्रोसेस होता है और डे के टाइम पे ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। हमने फोटोसिंथेसिस इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसमें से 3 पॉइंट्स हमने पढ़े थे, तो ऑलरेडी स्टडी उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। ओके, सो दिस इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नाउ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में 2 तरह के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट आर द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, प्लांट्स भी 2 तरह के होते हैं, तो हम एक्वेटिक का कंप्लीट बात करेंगे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं, व्हाट हैपेंस इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है मतलब जो लैंड पे है, ठीक है, एनिमल्स ऑन लैंड, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन ब्रीथ कर सकते हैं एयर, तो वो क्या करते हैं, दे ब्रीथ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उससे वो क्या कर लेते हैं, ब्रीथ कर लेते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का तो सॉर्टेड है, वो क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उनका जो उनकी बॉडी है, उनका जो बॉडी डिजाइन है वो इतना इवॉल्व हो गया है कि वो डायरेक्टली एंड इजीली एटमॉस्फेयर से क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक एनिमल्स व्हाट डू दे डू, एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन, breathe in oxygen dissolved in water। ठीक है, जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो क्या करते हैं, वो इनटेक करते हैं, लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ओके, सो द डिजोल्व ऑक्सीजन इज लेस, जो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर है वो क्या है, लेस है, बहुत कम है। तो कम होने के कारण जो रेट है, रेट ऑफ ब्रीदिंग है, ठीक है, रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज फास्टर। जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है एक्वेटिक एनिमल्स का वो क्या है, फास्टर है, मतलब वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश, फिश क्या करती है, दे टेक इन वाटर, वाटर लेती है। ठीक है, वाटर के अंदर क्या है, वाटर कंसिस्ट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है।
फिश के पास क्या प्रेजेंट है? गिल्स। फिश हैव गिल्स। गिल्स क्या करते हैं कि वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसे लेते हैं, ठीक है, उसे कंज्यूम करते हैं। तो गिल्स का फंक्शन क्या है कि जब फिशेज वाटर इनटेक कर रही है उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको गिल्स क्या करते हैं? लेते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच एक्वेटिक एनिमल टेक इन ऑक्सीजन, और एक्वेटिक एनिमल्स इस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल विद द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन।